Good morning, everyone. My name is Aati Gupta, and you're watching my YouTube channel, Education for Kids. Today's topic is from the Cordova Science, Class 5th, The Word of the Living, Unit 4, Amazing Animal. As you see through the topic, you can able to guess the chapter is about the different kinds of amazing animals, their habitats, their feeding habits, their movements, their covering, bodies covering, how they breed, and how they migrate from one place to another. That is why the animals are amazing. Now we are going to start reading from this. This world is full of amazing animals. Animals are found almost everywhere in deserts, polar regions, oceans, airs, and mountains. Animals choose a place to live according to their body structure. The surrounding in which the animals live is called their environment. Their food, habit, behavior, and body feature help them to live in that particular environment. Identify the animals and their places of living in the picture given below and write in the spaces below. So we are talking about the animals. Animals full of amazing word है amazing animals का. एनिमल्स हर जगह मिलते हैं, चाहे वो डेजर्ट रीजन हो, पोलर रीजन हो, ओशन हो, एयर हो या माउंटेन्स हो. एनिमल्स अपनी रहने की जगह अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग या बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चूज करते हैं. और जो सराउंडिंग जिसमें एनिमल्स रहते हैं उनको एनवायरमेंट कहते हैं. उनकी खाने की आदत, उनकी बॉडी, उनका बिहेवियर उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, जो उसको हेल्प करता है वहां पे जिंदा रहने में. So, habitat. Habitat means the kind of habit in which animals live. An area in which a particular animals naturally live, eat, grows and reproduce is called its habitat. एक ऐसा पर्टिकुलर एनवायरमेंट जहाँ पे वो एनिमल्स नेचुरली रहते हैं, खाते हैं, बड़े होते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, उस फीचर को कहते हैं हैबिटेट. And animals make its home within its habitat. For example, forest is the habitat of many animals like lions, monkeys, and snakes. But all these animals live at different places in the forest. Like lion lives in a den, a monkey lives on a tree, etc. तो हर एक जानवर का अपना एक घर होता है अपने हैबिटेट में. जैसे फॉरेस्ट हैबिटेट है बहुत सारे जानवरों का, जैसे लाइन्स का, मंकीज का एंड स्नेक्स का. और भी बहुत सारे जानवर अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉरेस्ट की प्लेसेस में रहते हैं. जैसे लाइन डेन में रहता है, मंकीज ट्रीज पर रहते हैं, एक्सेट्रा. सो डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट. द मेन हैबिटेट फॉर एनिमल्स आर forest, desert, polar region, and high mountains, oceans, and fresh bodies like lakes and river. तो अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग हैबिटेट होता है. मेन हैबिटेट एनिमल्स का है फॉरेस्ट, डेजर्ट रीजन, पोलर रीजन और हाई माउंटेन्स. और लेक्स और रिवर फ्रेश वाटर का है और ओशंस. Forests are large areas that contain variety of trees and other plants. A large variety of animals also live in forests. Different animals live at different places in the forest. For example, lions and tigers lives in caves or dens, birds and monkeys on trees, snakes in holes and rabbits in burrows. The forest एक large area है वैरायटी ऑफ ट्रीज का और भी बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स का. जो लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स है वो फॉरेस्ट में रहती है. अलग अलग तरह के एनिमल्स अलग अलग जगहों पर रहते हैं फॉरेस्ट में. जैसे लायन और टाइगर्स रहते हैं डेन और या केव्स में, बर्ड्स और मोंकीज ट्रीज पर रहते हैं, स्नेक्स होल्स में और रैबिट्स बरोज में. डेजर्ट, the sandy land area which do not have sufficient water sources or green vegetation are called desert. Desert are usually hot and dry places.
Water is hardly found in deserts. During the day, deserts are hot, while at night they are cool. तो सैंडी लैंड एरिया जहां पर सफिशिएंट वाटर सोर्सेज नहीं होते और आपके हरे भरे जंगल घास फूस ये नहीं होते, उस एरिया को हम कहते हैं डेजर्ट. डेजर्ट यूजुअली गर्म होता है और ड्राई होता है, एरिड रीजन होता है बेसिकली. वाटर यहाँ पर हार्डली ही मिलता है डेजर्ट में. ड्यूरिंग डे, डे के टाइम डेजर्ट गर्म होता है और रात के टाइम डेजर्ट कूल होता है. Desert animals have some special features that help them to survive. Some of them bury under the ground during the day to keep cool. Some have thick skin to save water. तो कुछ एनिमल्स के पास स्पेशल फीचर्स होते हैं वो जो डेजर्ट में सरवाइव कर सके, अपने आप को जिंदा रख पाए. कुछ अपने आप को जमीन के नीचे रखते हैं ताकि वो गर्म रह पाए और गर्मी से दिन में बच पाए. और यहाँ पर कुछ एनिमल्स की स्किन बहुत ज्यादा थिक होती है ताकि वो वाटर को सेव कर पाए. Camel stores fat in hump and uses its foods when needed. It can live without food and water for a long time. Long legs of camel help it to keep its body away from heat of sand. It can also protect its eye from sand with its long eyelashes. Camel अपना खाना स्टोर करके रखता है हम्प में और ये अपना खाना यूज कर लेता है जब भी इसको जरूरत होती है. ये अपना खाना ये अपने बिना खाने के बहुत टाइम तक जिंदा रह सकता है. कैमल की जनरली लॉन्ग लेग होती है जो क्या करती है, उसकी बॉडी गरम गरम सैंड से दूर रखती है और वो प्रोटेक्ट करती है उसकी आईज. लॉन्ग आई लैशेस से उसकी आईज सैंड से प्रोटेक्ट हो जाती है. Polar region and high mountains. Polar region and high mountains are very cold places. They are covered with snow. Polar bear, seals, and penguins are found in these regions. They are able to survive there because they have special features to withstand cold. They have a layer of fat under their skin which keeps them warm. Some of them also have thick fur. तो पोलर रीजन और हाई माउंटेन्स बहुत ज्यादा ठंडी जगहें होती हैं और ये हमेशा स्नो से कवर रहती हैं. पोलर बियर, सील्स और पैंगुइन इन रीजन में मिलते हैं और इनके पास स्पेशल फीचर्स होती हैं जिससे ये ठंड से बच जाते हैं. इनके लेयर होती है फैट की इनकी स्किन के अंदर जो इनको क्या रखती है, गरम रखती है और इनके पास थिक फर का कोट होता है एज अ स्किन. Birds live in polar regions such as penguins and patermigans have thick and dense feathers on their body. जो भी जानवर पोलर रीजन में रहता है उसके पास क्या होता है, थिक और डेंस फेदर होता है उसकी बॉडी पे ताकि उसकी बॉडी क्या रहे, वार्म. Oceans. Oceans are the largest habitat on Earth. A large variety of fishes are found in oceans. Blue whales, octopus, shark, etc. are found here. तो oceans आपका largest habitat है अर्थ पर जहां पर लार्ज वैरायटी फिशेस मिलती हैं ओशंस के अंदर. ब्लू वेल्स, ऑक्टोपस, शार्क्स ये सब के सब कहाँ मिलते हैं, ओशंस में. फ्रेश वाटर, रिवर, लेक्स और पॉन्ड में हमारा फ्रेश वाटर मिलता है. फिश, फ्रॉग्स, स्लेमेंडर फ्रेश वाटर में ही रहते हैं. फ्रॉग्स और स्लेमेंडर दोनों लैंड पे भी रह सकते हैं और आपके वाटर में भी रहते हैं, इसलिए इन जानवरों को एम्फीबियंस कहते हैं. Adaptation in animals. Different animals show different types of adaptation to live in a particular habitat. Adaptation are changes in the body organ, functions, features, or behavior of an organism that help it to survive in its habitat. Adaptation may be in their body covering, breathing organ, movement, and feeding habitats.
तो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन होते हैं ताकि वो उस पर्टिकुलर हैबिटेट में रह पाए। अडेप्टेशन हमारा होता है जैसे बॉडी ऑर्गन्स कैसे हैं, उनके फंक्शंस कैसे हैं, फीचर्स कैसे हैं, बिहेवियर कैसा है ऑर्गेनिज्म का, और वो हैबिटेट में कैसे सरवाइव कर रहा है, ये सारे फीचर्स अडेप्टेशन में होते हैं। अडेप्टेशन में भी अडेप्टेशन कैसे होता है, जैसे उनकी बॉडी की कवरिंग कैसी है, ब्रीदिंग ऑर्गन्स कौन से यूज कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट कैसी है, और उनकी फीडिंग हैबिट्स कैसी है। बॉडी कवरिंग, animals do not wear clothes to protect themselves from different weather conditions. Nature has provided them a body covering that helps them to live in a particular habitat and protect themselves from extremely hot and cold weather. They also use their body covering to keep themselves safe from hunting by other animals. Animals generally कोट वगैरह तो क्लॉथ्स तो नहीं पहनते अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग वेदर कंडीशन से, तो नेचर उनको एक बॉडी कवरिंग देता है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए बहुत ज्यादा ठंडे और बहुत ज्यादा गर्म वेदर में, और उनकी बॉडी की कवरिंग उनको सेफ रखती है फ्रॉम अदर एनिमल्स ऑल्सो। बॉडी कवरिंग ऑफ सम एनिमल्स आर एज फॉलोज। बॉडी कवरिंग कुछ जानवरों की इस प्रकार है। स्केल्स, bodies of fish and reptiles are covered with scales. Scales vary in size, shape, and structure. The scale of shrimp are rigid while eel has no scale. Most of the reptiles have horny scales to prevent water loss. Snakes also have scales. They use their scales to move on land. They also shed their skin periodically, which is replaced by new one. Shedding of old skin to acquire a new one is called molting. तो बॉडी ऑफ फिशेस और रेप्टाइल्स कवर होते हैं स्केल से। स्केल्स आपके डिफरेंट साइज के होते हैं, शेप के होते हैं और स्ट्रक्चर के होते हैं। स्केल श्रिम्प के रिजिड होते हैं जबकि ईल्स के पास स्केल होते ही नहीं है। कुछ रेप्टाइल्स के स्केल हॉर्नी होते हैं ताकि वाटर लॉस कम से कम हो पाए। स्नेक्स के पास भी स्केल्स होते हैं और ये स्केल्स उनको लैंड पर इधर से उधर जाने में हेल्प करता है। स्नेक्स अपनी स्किन को शेड ऑफ करता है एक बार, और इसी शेडिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ स्किन को कहते हैं मोल्टिंग। शेल, हमने देखा है टॉर्टोइस की बैक पे एक शेल होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है दूसरे जानवरों से। Animals like snails, tortoise, and turtles have hard shell, which, when these animals are in danger, they withdraw their hand and limbs into the shell. तो जब इन जानवरों को लगता है कि इनके पास खतरा है तो ये अपने आप को शेल के अंदर कवर कर लेते हैं। Feathers. Feathers covers the body of birds. They help them during their flights and also help them shape. Bird use their feather to keep themselves warm in cold and also protect from rain. All birds have three types of feather: flight feathers, down feathers and body feather. तो birds के पास भी एक कवरिंग होती है feathers की जो उनको हेल्प करती है उड़ने में और बर्ड को शेप देने में। बर्ड्स के फेदर उनको वार्म रखते हैं कोल्ड वेदर में और बारिश से भी प्रोटेक्ट करते हैं। बर्ड्स के पास तीन तरह के फेदर होते हैं। फ्लाइट फेदर होता है जो उनको उड़ने में हेल्प करता है, डाउन फेदर होता है जो उनकी बॉडी को वार्म रखता है, और बॉडी फेदर होता है जो बर्ड को बॉडी को शेप देता है। फर और वूल, animals like sheep, goats, and bears have fur that cover their body. Thick fur protect bear from rain and cold. In the same way, sheep's hair keep them warm when it is cold. We also use sheep's hair to make wool for woolen clothes. तो जो एनिमल्स हैं जैसे शीप, गोट, बियर्स के पास भी फर होते हैं ताकि उनकी बॉडी पे वो कवर हो पाए और उनको प्रोटेक्शन दे पाए। इसी तरह शीप्स के हेयर
उसको वार्म रखते हैं कोल्ड सीजन में। आपका एक शेयरिंग प्रोसेस होता है जिसमें शीप्स के हेयर्स को रिमूव किया जाता है, वो जनरली आपके समर सीजन में किया जाता है। वी ऑल्सो यूज, हम शीप्स के हेयर को यूज करते हैं वुलन क्लोथ्स को बनाने में। Camouflaging. We know that some animals like tigers, zebras, and grasshopper can merge their body covering with their surrounding. This property is called camouflaging, and these animals are called camouflaging animals. Camouflage makes animals hard to spot and protect them from other hunting animals and also from poaching, illegal hunting. Some animals like chameleon can even change their color to match the surrounding. तो कुछ जानवर हम देखते हैं जैसे टाइगर, जीब्रास एंड ग्रास हॉपर, वो अपनी बॉडी को मर्ज कर लेते हैं कवरिंग में अपने आसपास की सराउंडिंग में। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कोमोफ्लेज। और जो एनिमल्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है उन एनिमल्स को हम कहते हैं कोमोफ्लेजिंग एनिमल्स। कोमोफ्लेजिंग एनिमल्स को स्पॉट करना बहुत मुश्किल होता है और ये बच जाते हैं दूसरे जानवरों से और इलीगल हंटिंग से भी बच जाते हैं। कुछ जानवर जैसे आपके कैमिलियन गिरगिट अपना कलर चेंज कर पाती है अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग, अपने आसपास की सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। Feeding habits. We know that animals need food to get energy and to stay healthy. They depend on plants and other animals for their food. Different animals have different feeding habits. Some animals eat plants and some eat flesh of other animals. On the basis of their feeding habit, we can divide them into three types: herbivorous, carnivorous and omnivorous. हमें पता है कि जानवरों को फूड चाहिए होता है किसके लिए? एनर्जी के लिए और अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए। तो वो अलग अलग प्लांट्स पर और अलग अलग जानवरों पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। डिफरेंट और अलग अलग जानवर अलग अलग खाना खाते हैं। कुछ जानवर खाली प्लांट्स खाते हैं, कुछ जानवर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं और कुछ जानवर खाली जानवर ही खाते हैं। तो उनकी ये फीडिंग हैबिट्स पर हमने जानवरों को तीन कैटेगराइज किया है: हर्बीवोरस में, कार्निवोरस में और ओमनीवोरस में। जैसे हर्बीवोरस के नाम से हमें पता लग रहा है हर्ब्स, ग्रासेस, तो जो एनिमल्स खाली प्लांट्स खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस या हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। जैसे काउ, गोट, जिराफ, डियर, ये सब हर्बीवोरस एनिमल है। They have sharp front teeth in scissor to cut the part of plant and large flat back teeth, premolars and molars to grind the food. इनके sharp front teeth होते हैं इन scissors जो इनको कट करते हैं प्लांट्स को, और इनके फ्लैट ब्लैक टीथ होते हैं जो मॉलर्स और प्री मॉलर्स हैं जो फूड को क्या करते हैं? ग्राइंड। Animals that eat flesh of other animals are called carnivorous animal. Lions, tigers, and wolves are some carnivorous. They have very sharp, pointed canines to tear flesh and strong back teeth, premolars and molars to chew flesh and bones. तो जो एनिमल्स हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्निवोरस या कार्निवोरस एनिमल। लाइन, टाइगर और वुल्फ, ये कुछ जानवरों के नाम हैं जो क्या हैं? आपके कार्निवोरस। इनके शार्प पॉइंटेड कैनाइंस होते हैं जो मांस को फाड़ने में हेल्प करते हैं, और जो इनके पीछे के दांत हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जो च्यू कर पाते हैं फ्लैश को और बोन्स को। Some herbivores or rodents such as rabbits, rats and squirrels go on seed and fruit. They have small and sharp front teeth. तो कुछ आपने हर्बीवोरस और चूहों को देखा है, जैसे आपके रैबिट, रैट्स और स्क्विरल, ये क्या करते हैं? गॉनिंग प्रोसेस करते हैं, बहुत छोटे 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 छोटा खाते हैं। दे हैव स्मॉल और छोटे शार्प फ्रंट टीथ होते हैं। Some flesh-eating birds like eagles, kites, and vultures have sharp and hooked beaks for tearing the flesh. They also have strong claws to catch their prey.
तो कुछ फ्लैश ईटिंग बर्ड्स भी हैं जैसे ईगल, काइट्स और वल्चर, और इनकी बीक कैसी होती है, हुक की तरह, जो, और ये किस काम आती है, अपने फ्लैश को या अपने हंटिंग एनिमल को टीयर करने में। और इनके पास बहुत ज्यादा मजबूत पंजे होते हैं जिनको टैलॉन्स कहते हैं, जो अपने प्रे को कैच करने में हेल्प करते हैं। Animals that eat both plants and flesh of other animals are called omnivorous or omnivorous animal. Human being, bear and crow are some omnivorous. तो एनिमल्स जो दोनों प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, उनको ओमनीवोरस एनिमल कहते हैं। और इसमें ह्यूमन बीइंग भी है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग प्लांट्स भी खाता है और फ्लैश भी खाता है। बियर एंड क्रो भी कुछ एग्जाम्पल है ओमनीवोरस एनिमल के। ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग। Animals need to breathe to get oxygen for respiration. Oxygen burns the food within animal's body and release energy for all activities. Animals take oxygen from their surrounding like air and water. Different animals breathe through different organs. तो animals को breathe करना होता है ऑक्सीजन अपनी रेस्पिरेशन के लिए। ऑक्सीजन बर्न करता है फूड जो एनिमल्स की बॉडी में होती है और रिलीज करता है एनर्जी ताकि वो एक्टिविटी कर पाए। एनिमल्स ऑक्सीजन लेता है अपने आसपास की सराउंडिंग से, जैसे एयर से और वाटर से। अलग अलग एनिमल्स अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन यूज करते हैं ब्रीथ करने के लिए। Tiny organisms like amoeba and paramecium breathe through their body surfaces. तो टाइनी ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबिया और पैरामीशियम्स अपनी बॉडी सरफेस से ब्रीथ करते हैं। Insects have tiny holes along the side of their body. These holes are called spiracles. Insects breathe through spiracles. The air that enters through spiracles reaches all part of the body through small tubes called breathing tubes. इंसेक्ट्स के पास छोटे छोटे होल्स होते हैं उनकी बॉडी में जिनको स्पेरिकल्स कहते हैं, और ये स्पेरिकल्स ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। जो एयर है इन स्पेरिकल से एंटर होती है और इंसेक्ट्स की पूरी बॉडी में जाती है ट्यूब्स, स्मॉल ट्यूब्स के थ्रू, और इन छोटी ट्यूब्स को कहते हैं ब्रीदिंग ट्यूब्स। Aquatic animals like fish, prawns, and crabs breathing with the help of gills. They take in water through their mouth. This water passes through the gills where the oxygen dissolved in water is absorbed and reaches to every part of body. The gills also expel out carbon dioxide into water. जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे फिश, प्रॉन और क्रैब्स, वो ब्रीथ करते हैं गिल्स की हेल्प से। ये वाटर अपने माउथ के थ्रू एंटर करवाते हैं, वाटर पास होता है गिल्स के थ्रू, और जो उसके ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और पूरी बॉडी पार्ट में चली जाती है। गिल्स ही एक्सपेल आउट करती है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में। An adult frog breathes through its moist skin when it is in water, but on land it breathes through the lungs. तो जो फ्रॉग होता है जब पानी में होता है तो गिल्स की हेल्प से सांस लेता है, और जब वो लैंड पर आ जाता है तो लंग से सांस लेता है। जो अर्थवर्म है वो ब्रीथ करता है अपनी मॉइस्ट स्किन से। All the mammals, including human beings, birds, reptiles, adult amphibians, etc., breathe through lungs. जितने भी mammals हैं उसमें including human being, वो सारे के सारे breathe करते हैं किससे? lungs से। They have two lungs connected with a windpipe. Air reaches to the lungs through the nostrils, nose. The lungs takes in oxygen from this air and give out carbon dioxide with is breathe out through nostrils. तो इनके पास दो लंग्स होते हैं जो कनेक्ट होते हैं आपके विंड पाइप से। एयर लंग्स में जाती है नॉस्ट्रिल्स की हेल्प से, और ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है इसी नॉस्ट्रिल से। एक्वेटिक मैमल जैसे व्हेल, डॉल्फिन
ब्रीथ करते हैं लंग्स से। मूवमेंट, animals move from one place to another in search of food, shelter, and also to escape from their enemies. Different animals use different organs for movement. अलग अलग तरह के एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं खाना खाने की सर्च में, शेल्टर में, और अपने एनिमी से बचने के लिए। अलग अलग एनिमल्स अलग अलग ऑर्गन यूज करते हैं मूवमेंट के लिए। Land animals. The land animals mostly move with the help of legs. Most animals have four legs, two in front called forelimbs and two at back, hindlimbs. Some animals like dog, cats and tigers move with all four, but some other like human beings use their only hindlimbs or legs to move. Their forelimbs or hands can hold many things and help to do work. हर एक एनिमल्स के पास मोस्टली लेग्स होती हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने में। तो सारे जानवरों के पास चार लेग्स होती हैं, दो फ्रंट की जिसको फोर लिम्स कहते हैं और दो बैक की जिसको हिंड लिम्स कहते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे डॉग्स, कैट, टाइगर अपनी चारों टांगों पर चलते हैं और ह्यूमन बीइंग खाली हिंड लिम्स अपने दोनों पीछे के पैरों को यूज करते हैं या लेग्स टू मूव। और उनके जो ह्यूमन बीइंग के जो फोर लिम्स हैं वो किस लिए यूज होते हैं? बहुत सारी चीजों को होल्ड करने के। Reptiles like lizard, crocodiles, and tortoise crawl on land with the help of their short legs. The snakes also live on land, but they have no legs. They move with the help of their body scales. तो रेप्टाइल्स जैसे लिजर्ड, क्रोकोडाइल और टॉर्टॉइस क्रॉल करते हैं लैंड पर अपनी छोटी छोटी टांगों से। लेकिन स्नेक भी चलता है इधर से उधर, लेकिन उसके पास कोई भी लेग्स नहीं होते। वो एक जगह से दूसरी जगह अपने स्केल्स की हेल्प से चलता है। वाटर एनिमल्स, water or aquatic animals like fishes move with the help of their fins, while frogs and ducks use their webbed feet to swim. तो वाटर और एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फिश अपने फिन्स की हेल्प से इधर से उधर जाते हैं, और फ्रॉग्स और डक्स के क्या यूज करते हैं? वेब्ड फीट यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। Turtles have four paddles like limbs to push the water back and move forward. Animals like penguins and seals swim with the help of flippers. तो जो टर्टल्स होते हैं उसके फोर पैडल्स लाइक लिम्स होते हैं जो वाटर को आगे और पीछे पुश करता है। और एनिमल्स जैसे पेंगुइन और सील्स वो किसकी हेल्प से आगे जाते हैं? फ्लिपर्स की हेल्प से आगे जाते हैं। Birds can fly with the help of their wings. They have strong wing, modified forelimbs, and lighter body, which help them to fly. By moving their wings up and down, birds push themselves in the air. Birds use their two legs to perch on branches of tree. They also use their legs to walk or hop on the ground. Some birds like emu, ostrich, and penguin cannot fly because they are heavy bodies and weak wings. तो बर्ड्स अपनी विंग्स की हेल्प से उड़ते हैं। उनके पास जो विंग्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनकी बॉडी बहुत ज्यादा लाइट होती है, जिसकी वजह से वो उड़ सकते हैं। और अपने विंग्स को ऊपर और नीचे करके बर्ड अपने आप को हवा में बैलेंस करते हैं। बर्ड अपनी दो लेग ट्री की ब्रांच को होल्ड करने के काम में लाते हैं, उसको पर्चिंग प्रोसेस कहते हैं। बर्ड्स अपनी लेग से चल सकते हैं और कूद सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। कुछ बर्ड्स जैसे ईमू, ऑस्ट्रिच और पेंगुइन ये नहीं उड़ पाते, ये फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी होती है और विंग्स बहुत ज्यादा वीक होते हैं। Insects. Insects have 6 legs for movement. Insects like ants, cockroaches, and bugs crawl on their legs. Some insects like grasshoppers use their legs in hopping. Some insects like water boatmen swim in water with legs. Many insects like butterfly and firefly have wings which help them to fly.
इंसेक्ट्स के 6 लेग्स होते हैं मूवमेंट के लिए। इंसेक्ट्स जैसे एंट्स, कॉकरोच और बग्स क्रॉल करते हैं अपने लेग्स पे। कुछ इंसेक्ट्स जैसे ग्रास हॉपर अपनी लेग्स को यूज करते हैं कूदने के लिए। कुछ इंसेक्ट्स लाइक वाटर बोटमैन स्विम करते हैं वाटर में अपनी लेग से। कुछ इंसेक्ट्स जैसे बटरफ्लाई, फायरफ्लाई के पास विंग्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह उड़ने में हेल्प करते हैं। माइग्रेशन। Every year, some animals and birds move from one place to another to avoid harsh environmental conditions, to search food, or to reach their breeding ground. This is called migration. We can say the migration is the seasonal mass movement of animals to a more favorable environment. The bird's Arctic trend makes the longest migration, about 40,000 kilometers in every winter, from Arctic Circle to Antarctic Circle and back to Arctic Circle at the end of winter. Siberian crane and mallard duck come to India every winter to breed. तो हर एक साल कुछ जानवर या कुछ एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन के चक्कर में, ताकि वो खाने को सर्च कर पाए और ब्रीडिंग प्रोसेस कर सके। इसी को हम कहते हैं माइग्रेशन। और हम माइग्रेशन इसको भी कहते हैं जब सीजनल मास मूवमेंट होती है जानवरों की एक जगह से दूसरी जगह फेवरेबल एनवायरनमेंट के लिए, तो उसको भी हम माइग्रेशन कहते हैं। कुछ बर्ड्स जैसे आर्टिक ट्रेन सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट माइग्रेटिंग बर्ड है, जो 40,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है आर्टिक से अंटार्कटिक एंड अंटार्कटिक से आर्टिक सर्कल पे। कब? एंड ऑफ द विंटर। और साइबेरियन केन और मलाड डक हमेशा इंडिया विंटर सीजन में आती है। Fish like salmon lives in sea water. It travels long distance to reach the fresh water rivers to lay eggs. The young ones travel back to the sea. तो फिश जैसे सैल्मन सी वाटर में रहती है और ये बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करती है फ्रेश रिवर्स पे जाने के लिए, ताकि वो अपने अंडे दे पाए। और उसके बाद यंग वंस जो उसके बेबीज होते हैं वो वापस सी में आ जाते हैं। Some insects जैसे locust and monarch butterfly also migrate long distances. Monarch butterfly migrate from Canada to Mexico during winter and come back in summer. तो कुछ इंसेक्ट्स जैसे लॉक्टस एंड मोनार्च बटरफ्लाई माइग्रेट करती है बहुत लंबा डिस्टेंस। मोनार्च बटरफ्लाई माइग्रेट करती है कनाडा से मैक्सिको ड्यूरिंग विंटर सीजन में, और समर सीजन में वो वापस आ जाती है। If you like the way as I'm teaching, so do like and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you so much.